Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Hare Krishna. प्रणाम प्रणाम। हाँ, अभी नरोत्तम सर नहीं आए हैं, जरा सा इंतजार करेंगे हम। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। हाँ गुरु जी आगे। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हाँ गुरु जी आगे, आप शुरू करिए। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। All congratulations, all veneration to all the saints and others of the audience. Adorable salutation to the Trinity who dive deep into the abyss of the fathomless ocean of bhakti, prem, Brahmavidya, and collect most precious pearls, the pearls radiating sublime spiritual consciousness. I find in their talks the brilliant synthesis of scholarship, spiritual insight, and poetic aestheticism that are rare in this age of materialism and consumerism. Kali Prasad ji is the real moderator of this Hari Sabha. Actually, he leads us towards the God. He is our benefactor. Truly, he is leading us towards the God. Despite his hectic schedule, college assignments, etc., he renders immense service to us unhesitatingly. He has been connecting links to us and thus acting as a facilitator in transforming our lives. We are indebted to him. I pray, Lord, for his well-being, prosperity, and long life. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. All the scriptures glorify the association of saints. Paropakaraaya Barsanti Meghaha, Paropakaraaya Bahanti Nadyaha, Paropakaraaya Phalanti Vrikshaha, Paropakaraaya Satanga Vibhutayaha, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. Keeping this in mind, Acharya Narottam Sir has been instrumental in organizing this Satra in conjunction with Acharya Hare Krishna ji and Acharya Jayakant ji. During my long acquaintance with Acharya Narottam Sir, I observe in him a strong commitment to lead the life of a saint. As I know, Acharya Hare Krishna ji evinces keen interest in Krishna Bhakti. A devout Ram Bhakta, Acharya Jayakant ji has been serving us the mellow, extracting from the Ramayana, Manas, the Bhagavatam. Scholarship and devotion rarely go together. Absolute materialism in the contemporary society dilutes everybody. Amidst this scenario, these three householder saints gave a clarion call to us like the Vedic rishis, Shunnantu Visve Amritasya Putraha, Aje Dhamani Divyani Tambhu, Vedahametam Purushang Mahantam Aditya Varnang Tamasa Parastat, Tame Viditva Atimrutumeti Nanya Pantha Vidyate Ayanayo. Listen, listen, O immortal sons of the earth and the beyond. We have already realized the supreme reality who transcends all darkness, ignorance, avidyas, and who is the effulgence of the sun. We are ready to impart our realization to you all. Only realizing that supreme being, you can attain immortality, and there is no other way out. Legions are the Sanskrit scholars in India and abroad, but scholars and sadhus like Rai Ramananda could make an indelible impression in the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We all know sadhu's association brings about diametric change in the lives of people of obnoxious character,
wretched characters. King Punya Brahmana Punya Bhaktala Adarsha Tha. You see, Girish Ghosh, the famous Bengali dramatist of 19th century India, employed two prostitutes, namely Binodini and Kumudini, what I remember, to act the role of Prahlad Maharaj in Kolkata theatre. Many educated people, saints, used to visit this theatre when plays of spiritual characters, spiritual importance were enacted. Sri Ramakrishna Paramahansa used to visit the theatre very often whenever spiritual drama delineating the character of devotees were staged. Those prostitutes came in contact with Sri Ramakrishna via Girish Ghosh, who happened to be a devotee of Sri Ramakrishna Paramahansa. Binodini was rehearsing all the devotional attributes, gestures, postures, expressions of Prahlad Maharaj as per the instruction of Girish Ghosh to make her acting more lively. As a consequence, Binodini was so obsessed or identified with the devotional attributes of Prahlad Maharaj that the audience felt as if the real Prahlad Maharaj was speaking before them, as if they were in the Hiranyakashipu's palace. Sri Ramakrishna's influence on Binodini was so much so that Binodini's theatrical performance in the role of Prahlad Maharaj attracted the erstwhile prominent saints of Calcutta. The saints witnessing the Prahlad Natak were so fascinated by the acting of Binodini that they were oblivious of the fact that they were witnessing a drama, and ultimately they unreservedly and unhesitatingly and spontaneously bowed down their heads in prostration under the feet of Binodini in utter reverence for her. This was the impact of Sadhu Sangha. All wretched, lascivious tendencies disappeared from her mind, and she got herself initiated to the monastic order. While reading the biography of George Cadona, Professor of Linguistics, University of Pennsylvania, America, I questioned myself, why did that learned professor come to India to learn the subtleties of Paninian system of grammar in a seminal way from that South Indian scholar Saint Jagannatha S. Padashastri? As Cadona reminisces, Shastri introduced me to the deeper and deeper area of traditional Paninian system of grammar, and I found the real learned in him. Indian saints, Sanskrit scholars, and their literary creations have occupied a pivotal role in shaping the mind of the people of the world, thus facilitating their evolution to the higher and higher echelons of existence. Look at the poetic dexterity of Kalidas in depicting the character of Dushyanta. Though enamored by the beauty of Sakuntala, Dushyanta is not carried away by his passionate urge all at once. He reflects, oh, she could be the daughter of a Brahmin. Why my mind is agitated by coming in sight of Sakuntala? Being a Kshatriya, it is unbecoming of me to harbor passionate love towards a Brahmin girl. It is prohibited, pratiloma relationship, which is prohibited in our Smriti Shastras because it is the cause of inferior progeny. The moral, ethical, spiritual ethos of Indo-Aryans have been depicted in natural parlance by the Indian poets and dramatists and writers. Therefore, Sanskrit language and literature has a significant, sanctifying, divinizing effect in every aspect of human life. Bhagavan Vyasa's Bhagavatam is the marvel of God's grace. It is pregnant with the divine Milo, Bhakti Rasa, the superb ambrosia of the cosmos, and the trinity of these acharyas have been very effectively and impressively inculcating the devotion, Vaidhi and Raganuga both by their exuberant, life-sustaining Harikatha. Narration of the Bhagavatam with the charming spontaneity and perception of a child and wisdom of a prophet or saint, especially of Sridhar Swamin and Sri Chakravarti Par and others, and presented by our acharyas of this Satra as a powerful magnetizing impact on the old and young alike. The budding Sanskrit scholars can imbibe and emulate the tenor of the expatiation of these scholars and carry forward their legacy for posterity. The commentary runs on the episode of Trinavarta's liberation and Lord Balakrishna's reappearance on earth. Here our commentators have dissected the affectionate psyche of the Gopikas. Gopikas reflect some attribute, the miraculous escape of Balakrishna from the clutch of the demon to the grace of God, while others ascribe it to Purta, Ishta, Dana, and the like, as narrated by Jayakanji Esther Knight. Balakrishna's unheard reappearance reassures God's omnipotence. I am the most powerful Lord of this cosmos. Nutyus Charati Madhvayat. Acharya Jayakanji's discussion last evening encompassed the focal point, Sadhu Samatvena Bhayad Vimuchyate. He cited Shruti, Dityad Bhayang Bhavanti. Attachment to anything other than Sri will end in utter degeneration of life here and hereafter. Atmana Sarvbhutanang Bhayang Tibrang Nivartate. Further, Acharya ji cited also
सत्यांकितो किंकशिपो प्रयासै बाहु सुसिद्धि उपवरणै किम एटसेट्रा अकस्मात् भदन्ति कवयो धन दुर्मदनाम. This was Jayakant's address yesterday night. God has extended all the benefit, all the bare necessities required for maintenance and sustenance to every creature of this universe. Why then a spiritual aspirant should become dependent on rich men infatuated with the evil pride of their wealth? And now I request Venerable Acharya Narottam Sir to start his valuable discourses. Thus the verse reads, oh, no, I'm wrongly reading. दृष्ट्वा भूतानि बहुशो नंद गोप बृहद बने वसुदेव वचो भूय मानयामास विस्मितः एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पायामास स्तनं स्नेह परिप्लुतां पीत प्रायस जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदं. नमो नमः. नमो नमः. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो आज के इस सायंकालीन श्रीमद्भागवत सत्र में समुपस्थित एवं इस यंत्र के माध्यम से युक्त सभी वैष्णवजनों, संतजनों, साधुजनों, भक्तजनों एवं श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरण वंदन करके मैं आनंदातिरेक को प्राप्त करता हूँ, लाभ करता हूँ. आप सबकी कृपा से, आप सबकी सहृदयता से, आप सबके शुभाशीर्वाद से हम लोगों को भगवान के दिव्य कथा रस में सुबह शाम दोनों समय अवगाहन करने का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है. इसलिए बार बार आप लोगों के चरणों में कृतज्ञता एवं प्रणामांजलि निवेदन करता हूँ. जैसे कि हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, सप्तम अध्याय के अंतिम छोर पर हम लोग हैं, लेकिन एक कथा भगवान की एक लीला अवशिष्ट है. जैसे कि हम लोगों ने इस अध्याय के आरंभ में श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी के कथन से हम लोगों ने यह श्रवण किया था कि इस अध्याय में मुख्यतः 3 लीलाएं भगवान की वर्णित हैं. उत्क्षिपन सकटम व्योमनी, सकटासुर को भगवान ने आकाश में फेंक दिया अर्थात उसको उलट दिया. तृणावर्तम अधक्षिपन, एवं तृणावर्त को धराशायी कर दिया अर्थात भूतल में फेंक दिया. सकट को आकाश में फेंका भगवान ने एवं तृणावर्त को भूमि में फेंका. एवं दर्शयन विश्वम आस्ये च कृष्ण क्रीडति सप्तमे, एवं अपनी मैया यशोदा को अपने मुखमंडल में विश्व का दर्शन करा करके भगवान ने विस्मित किया. यह 3 लीलाएं भगवान की इस सप्तम अध्याय में वर्णित है. इसका हम लोगों ने पहले श्रवण किया था. तो उसमें से 2 लीलाएं तो अभी प्रतिपादित हुई हैं, वर्णित हुई हैं. उसका आप लोगों ने प्रचुर आनंद लिया. हम लोगों को भी इन लीलाओं का वर्णन में अत्यंत सुख मिला. तो ये भगवान का वैशिष्ट्य है
भगवान के चरित्र का यह स्वभाव है कि जो वक्ता होता है, जो श्रोता होता है, सभी को भगवान के चरित्र आनंद प्रदान करता है। तो वो आनंद हम लोगों ने प्राप्त किया। अभी जो अंतिम लीला है, अर्थात विश्व दर्शन लीला, ब्रह्मांड दर्शन लीला, भगवान ने अपनी मैया को अपने मुखमंडल में विश्व का दर्शन कराया। उस लीला के प्रारंभ में कल हमारे प्रिय श्रीपाद जयकांत प्रभु जी इसकी शुरुआत की थी, एवं श्रीधर स्वामी जी का जो भूमिका पद्य है इस लीला के बारे में, उसका आपने उच्चारण किया था। वो पद्य हम एक बार और उच्चारण करना चाहेंगे। तृणावर्ता गमे दृष्ट गौरवा संकिनिं प्रसूम बोधयन दर्शयामास जृंभमाणो मुखे जगत। अर्थात जब तृणावर्त का आगम हुआ था तो भगवान ने अपने संकल्प से अपने शरीर के भार को बढ़ा दिया था ताकि मैया उनको गोद से हटा करके, गोद से निकाल करके भूमि पर रख दें, क्योंकि तृणावर्त भगवान को अपहरण करने के साथ साथ मैया का कहीं अपहरण कर न ले, इस विचार से भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया था। तो तृणावर्ता गमे दृष्ट गौरव, अर्थात तृणावर्त के आगमन के समय में जिस गुरुत्व को, भगवान के शारीरिक जिस गुरुत्व को देख करके, जिस वजन को देख करके मैया डर गई थी, ऐसी मैया को भगवान अभी बोधयन, अर्थात मैया को उस भय से मुक्त करने के लिए उनको दूसरी लीला प्रदर्शन करा करके भगवान के प्रति मैया का जो ऐश्वर्य ज्ञान हुआ था उसका विलोप करना चाहते हैं इस लीला में, इस ब्रह्मांड दर्शन लीला में। तृणावर्ता गमे दृष्ट गौरवा संकिनीम, अर्थात गौरव के कारण शंका हो गई थी कि ये हमारा बच्चा कोई देवता तो नहीं है, कोई भगवान तो नहीं है, या इसमें कोई राक्षस आदि का आवेश तो नहीं हो गया है। इस तरह से भगवान के बारे में कई तरह के विकल्प मैया के चित्त में आए थे। उन विकल्पों को दूर करने के लिए भगवान ने इस लीला का संगठन किया, इस ब्रह्मांड दर्शन लीला का संगठन किया। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। तो इस श्लोक का अर्थ लगभग हम लोग कल मूल अर्थ श्रवण किए थे। अर्थात एक ऐसा समय जब मैया अपने बालक को, भगवान श्री कृष्णचंद्र को गोद में लेकर के स्तन्यपान करा रही थी, और वह स्तन्यपान कैसे ना अपने भगवान के प्रति मैया का प्रेम के आधिक्य के कारण स्तन उनका झर रहा था, उनके वक्षस्थल से स्तन का प्रवाह हो रहा था, स्तन्य का प्रवाह हो रहा था। तो ऐसा स्नेह परिप्लुता जो जननी मैया यशोदा भगवान को स्तन्यपान करा रही थी, यह कथा श्लोक का मूल अर्थ है। इस अर्थ को व्याख्याकार हमारे सनातन गोस्वामी पाद के व्याख्या के आधार पर हम लोग समझना चाहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या लिखी है, तो हम सीधे उस व्याख्या अंश का पाठ करना चाहते हैं एवं उसका रसास्वादन करना चाहते हैं। एकदा, श्लोक में एकदा शब्द है, एकदार्भकम आदा, और भक शब्द का मतलब है बच्चा, बालक। तो अर्भकम अर्थात स्वपुत्रम श्री कृष्णम आदाय एकदा। एकदा इस शब्द की व्याख्या में श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं, कस्मिश्चित काले, अर्थात काल का निर्देश नहीं हुआ है कि भगवान के कितने उम्र के वयस में
भगवान का आयु तब क्या हुआ था, 2 महीना 3 महीना, ऐसा निर्देश नहीं किया गया है। उसका कारण बता रहे हैं। काला नियम श्री भगवत काल पारतंत्र्या भावात, अर्थात भगवान जो काल के भी नियंत्रक हैं, काल के भी जो परिचालक हैं, काल के भी जो प्रभु हैं, काल के भी जो काल हैं, तो उनके ऊपर काल का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि भगवान काल पारतंत्र्य अभावात, भगवान में काल की परतंत्रता नहीं रहती, काल की अधीनता भगवान में नहीं है, इसलिए काल का निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए एकदा कहा गया है, किंबा बाल्येपि तारुण्यस्य तारुण्येपि बाल्यस्य प्रदर्शनेन वयो निर्धारा सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान परब्रह्म परात्पर परमेश्वर वे कब कौन सी लीला संघटित करेंगे, वहां अवस्था विशेष भगवान की लीला में नियामक नहीं होता है। अर्थात भगवान चाहे तो बाल्यावस्था में तरुण लीला संघटित कर सकते हैं, तरुणावस्था में अर्थात युवावस्था में भगवान बाल्य लीला का भी संगठन कर सकते हैं। इसलिए भगवान के बारे में किसी भी निर्दिष्ट लीला को किसी निर्दिष्ट काल में करने का कोई नियम नहीं है, अर्थात कोई उसमें नियंत्रण नहीं है कि भगवान को इस उम्र में यह लीला करना है। जैसे प्राकृत बालक में, प्राकृत मनुष्य में देखा जाता है, वह उसकी लीला अर्थात उसके कार्यक्रम निश्चित होते हैं। वो बाल्यकाल में बाल्य लीला ही करता है, युवावस्था में युवा लीला ही करता है, और वृद्धावस्था में वृद्ध के आचरण करता है। उस तरह से भगवान के बारे में नहीं कहा जा सकता है। किंबा बाल्येपि तारुण्येपि बाल्यस्य प्रदर्शनेन वयो निर्धारा सकते हैं, इसलिए एकदा कहा गया। आदाय, एकदार्भकम आदाय, आदाय का मतलब ले करके, कहां से लिया, भगवान को मैया ने कहां से उठाया, तो उसके बारे में श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, आदाय भूमौ क्रीडंतम, भगवान भूमि में क्रीड़ा कर रहे थे। ब्रजभूमि के प्रति भगवान की जो आसक्ति है वो भक्तजन जानते हैं। तो ब्रजभूमि में भगवान जब लोटपोट हो रहे थे, अपने लीला कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, उस भूमि से भगवान को उठा करके मैया का थोड़ा सा अवसर था, समय था, गृह कर्म से थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान को गोद में लेकर के वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहती थी, इसलिए मैया ने भगवान को गोद में लिया। आदाय, अर्थात बलाद गृहीत्वा, क्योंकि भगवान आना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान क्रीड़ारत थे, खेल में उनको मन लगता था। तो मैया जब गोद में ले रही थी भगवान मैया को, माने बलाद गृहीत्वा, अर्थात भगवान को मैया ने अपने बल से, अर्थात भगवान के अनिच्छा के बावजूद मैया ने उनको गोद में लिया। किंबा पल्यंकिकायाम शयानम तम ततो गृहीत्वा, या ऐसा भी हो सकता है, उसको श्री सनातन गोस्वामी पाद इदम इत्थम तया नहीं कह सकते हैं कि मैया ने जब भगवान को गोद में लिया तब भगवान भूमि में क्रीड़ा कर रहे थे या पर्यंक में शयन कर रहे थे। तो चाहे वो शायद पर्यंक में शयन कर रहे हों या क्रीड़ा कर रहे हों, जहां कहीं भी हो, वहां से भगवान को लेकर के मैया ने अपने गोद में भगवान का स्नेह किया। तो श्लोक में जो भामिनी शब्द है, भामिनी शब्द का अर्थ श्री सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं, परमोत्तमा नारी। भामिनी अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थात किसी भी नारी का विशेषता को बताने के लिए, असाधारणता को बताने के लिए, सद्गुणता या उसकी विशिष्टता को बताने के लिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं परमोत्तमा नारी श्री यशोदा, अतः पुत्र स्नेह रसे परिप्लुता। अगर उत्तम नारी जो होती है वो अपने पति के प्रति एवं अपने संतान के प्रति असाधारण प्रेम धारण करती है, असाधारण प्रेमवती होती है, इसलिए भगवान के प्रति स्वतः यशोदा मैया का परिपूर्ण प्रेम था। इसलिए कहते हैं अतः पुत्र स्नेह रसे परिप्लुता, परिप्लुता अर्थात अत्यंतम निमग्ना। अतएव प्रश्नुतम, देखिए पहले तो भामिनी यह कारण है भगवान के प्रति, पुत्र के प्रति अति स्नेहशील होने का, और अति स्नेहशील होना भी कारण है प्रश्नुत स्तनी, अर्थात वक्ष से अपने आप स्तन्य का अपात होना, झरना, यह अत्यंत स्नेह का कारण होता है। अर्थात यशोदा मैया अत्यंत उत्तम नारी थी, उत्तम जननी थी, सर्वोत्तम जननी थी, इसलिए पुत्र के प्रति वो अत्यंत वत्सला थी, पुत्र प्रेमशीला थी और अत्यंत प्रेमशीला थी, इसलिए पुत्र के स्मरण से ही उनके वक्षस्थल से स्तन्य का बहना स्वाभाविक था। स्नेह परिप्लुता अतएव प्रश्नुतम, प्रश्नुतम का अर्थ कर रहे हैं प्रकर्षेण वस्त्रादि आर्द्रीकरणेन सदा क्षरत, अर्थात यशोदा मैया के प्रति अपने पुत्र श्री भगवान के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, निरंतर उनके वक्षस्थल से स्तन्य का क्षरण होता था एवं वो कपड़ा पहनती थी, वो कपड़ा गीला हो जाता था उस स्तन्य से। क्योंकि देखिए इसका विचार करिए, जो भगवान समस्त जगत को वात्सल्य रस देने में क्षम हैं और देते भी हैं, तो ऐसे भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन मैया करा रही है, तो इसलिए मैया के हृदय में कितना स्नेह होगा इसका वर्णन सुख सनक आदि भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसको क्या समझें, भगवान के प्रति मैया का क्या वात्सल्य था। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए, अपने पुत्र का स्मरण करने के कारण उनके वक्षस्थल से स्तन्य का क्षरण निरंतर होता था, उनके कपड़ा हमेशा गीला हो जाता था। इसलिए स्नेह परिप्लुता प्रश्नुतम, स्नेह परिप्लुत होने के कारण उनका स्तन, उनका वक्षस्थल प्रश्नुत हुआ, अर्थात हमेशा स्तन्य का क्षरण हो रहा था। तो ऐसी मैया ने भगवान को लेकर के स्तन्यपान करा रही थी। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता पीतप्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृंभतो ददृशे त्विदम्। पीतप्रायस्य, जब भगवान पीतप्राय हो गए थे, पीतप्राय शब्द के समस्त व्याख्याकार अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे थे, व्याकरण संबंधी काफी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन उसका सार या उसका कोई सरल एक पंथा ऐसा श्री सनातन गोस्वामी पाद निकाले हैं। उनका कहना है कि पीतम, पीत शब्द का अर्थ पानम, अर्थात भावार्थ का प्रत्यय है। पीतम अर्थात पानम, प्रायम ईसत असिद्धम, अर्थात ज्यादातर पान हो गया है, स्तन्यपान भगवान ने लगभग कर लिया है, ईसत असिद्धम। तो पीतम अर्थात पानम, तब प्रत्यय भावार्थक है, पीत शब्द का अर्थ है पान, प्राय शब्द का अर्थ है ईसत असिद्ध। तो पीतम पानम प्रायम ईसत असिद्धम यस्य, अर्थात जिस बालक के पान अर्थात स्तन्यपान ईसत असिद्ध है, अर्थात थोड़ा सा बाकी है, अर्थात लगभग भगवान ने भरपेट स्तन्यपान कर लिया है, थोड़ा बहुत और भी कर सकते थे, लेकिन इसी अवस्था में इसी को पीत प्राय कहा गया है। तो पीत प्रायस्य जननी
सातस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति। तो मैया क्या कर रही थी, जब भगवान का स्तन्यपान लगभग हो गया था, भगवान अभी मुख खोल करके मैया को अपना छोटा छोटा एक दो दांत निकला हुआ है एवं मुंह को खोल करके, जैसे बटुआ का मुख होता है, छोटा सा मुख होता है, तो ऐसा मुख को खोल करके भगवान मैया को उस मुखमंडल का दर्शन करा रहे थे। तो उस मुखमंडल का, उस ओष्ठ का, उस नासिका का स्पर्श करके भगवान को सुख दे रही थी एवं खुद वात्सल्य रस में विभोर हो रही थी मैया। तब भगवान को जृंभतः, भगवान को जम्हाई आई, उबासी आई, भगवान को जम्हाई आई। तो जृंभतः जब भगवान ने मुख खोला तो उस समय मैया ने ददृशे त्विदम, अर्थात ऐसा दृश्य मैया ने उनके मुखमंडल में दर्शन किया। भगवान का स्तन्यपान जब तक लगभग जब समाप्त हो चुका था, तो ऐसा रुचिरस्मित मंद हास्य युक्त भगवान का जो मुखमंडल, उसका लालन करती हुई, उसका आदर करती हुई, उसका नासिका आदि का स्पर्श करती हुई भगवान को आनंद दे रही थी एवं खुद आनंद प्राप्त कर रही थी। तो उसी समय भगवान को जम्हाई आई, इसलिए भगवान जृंभण करने लगे। तो उसी अवस्था में मैया ने जब मुखमंडल का दर्शन किया, तब इदम ददर्श, इदम ददृशे, अर्थात ऐसा छवि, ऐसा चित्र, ऐसा स्वरूप उनके मुखमंडल में भगवान का दर्शन हुआ। तो यह तो श्लोक का सामान्य अर्थ है। इसको हम लोग वैष्णव तोषणी व्याख्या के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ विशेष बात इसमें है। पीत प्रायस्य इति, पीता गावः विभक्तः भ्रातरः इतिवत् कर्तरिक्तः। तो पीत प्राय अर्थात पीतवान प्रायः, जब कर्तरिक्ता प्रत्यय होगा तो पीत शब्द का अर्थ है पीतवान। तो ऐसा होता है क्योंकि कर्म की अविवक्षा में ये धातु अकर्मक माने जाते हैं। तब गत्यर्थाकर्मक इत्यादि सूत्र से वहां त प्रत्यय होकर के पीत हो गया, जिसका अर्थ है पीतवान, अर्थात प्रापान कर लिया है, प्राय लगभग पान कर लिया है, ऐसा अर्थ। इतिवत् कर्तरिक्तः। लेकिन सनातन गोस्वामी आगे कह रहे हैं भावक्तांतात, जैसे जिसका हमने अभी उल्लेख किया था, भावक्तांतात पीतम पानम प्रायम ईशत असिद्धम यस्य इति। ये भी अर्थ हो सकता है पीत प्राय शब्द का, अर्थात जिन भगवान का पान, स्तन्यपान लगभग हो गया है, ईशत असिद्ध है, थोड़ा सा अभी बाकी है। टीका मते, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद जो अर्थ कर रहे हैं वो थोड़ा सा दूसरा कुछ अर्थ कर रहे हैं। स्तन शब्द लोपो अत्र आर्षः एव। श्रीधर स्वामी पाद अर्थ कर रहे हैं पीत प्राय स्तनस्य, अर्थात पीत प्राय है स्तन जिसके द्वारा, वो पीत प्राय स्तन, तस्य पीत प्राय स्तनस्य, लेकिन स्तन शब्द का उत्तर पद लोप आर्षत्वात् हो गया है, इसलिए पीत प्रायस्य। इस तरह की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं। स्तन शब्द लोप अत्र आर्ष एव टीका मते, अर्थात श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं श्रीधर स्वामी जी महाराज ने पीत प्राय स्तनस्य, यह मूल शब्द था, उसमें आर्षत्वात् स्तन शब्द का लोप होने से पीत प्रायस्य ऐसा अर्थ हुआ है। इस तरह की व्याख्या है। सुतस्य इति, तो पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम पीत प्रायस्य सुतस्य। इस श्लोक में जननी सा, इसके जगह पर कहीं कहीं सुतस्य है। पीत प्रायस्य सुतस्य जननी रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे त्विदम। तो जिस पक्ष में, अर्थात जिस पाठ में जननी शब्द भी है और सुत शब्द भी है, तो उसका जिक्र करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं जननी इति सुतस्य इति स्नेह भरम बोधयति। अर्थात श्लोक में जननी शब्द का भी उल्लेख है और सुत शब्द का उल्लेख है। तो हम लोग जानते हैं
कि संसार जड़ जगत में माता एवं पुत्र का जो संपर्क होता है, जो स्नेह होता है, और भगवान का अपनी माता के साथ कितना स्नेह होगा, अर्थात मैया का भगवान के प्रति कितना आदर होगा, कितना वात्सल्य होगा, तो वह इन दो शब्दों से स्फुरित होता है, सूचित होता है, जननी और सुतस्य ऐसा कहने से। जननी इति सुतस्य इति च स्नेह भरम बोधयति, तत्र च रुचिरस्मित इति परम सौंदर्यम। भगवान का जो मुखमंडल में जो मंद हास है वह रुचिर है, अत्यंत सुंदर हास है। तो जिस भगवान के मुखमंडल में इतना सुंदर हास है, मंदस्मित है, तो उस भगवान के मुखमंडल का सौंदर्य कितना होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए परम सौंदर्य की बात श्री सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। रुचिर स्मित इति परम सौंदर्यम अतः लालयंती, अर्थात भगवान के सौंदर्य में आकृष्ट होकर के, अपने पुत्र के मुखमंडल के सौंदर्य में, समस्त अंग प्रत्यंग के सौंदर्य में आकृष्ट होकर के मैया उनको दुलार रही थी, उनका आदर कर रही थी, स्नेह कर रही थी। जृंभमाणस्य तल्लालन जनित आनंद भर आलस्येन जृंभाम कुर्वतः। बहुत सुंदर व्याख्या है। भगवान को जम्हाई क्यों आई उसका कारण बता रहे हैं। तल्लालन जनित आनंद भर आलस्येन, अर्थात मैया भगवान का लालन कर रही है, भगवान को आदर कर रही है, तो उससे के कारण भगवान को अत्यंत आनंद, अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है। तो उस सुख के कारण भगवान का आलस्य आ गया है, उसके चलते भगवान को जृंभा अर्थात जम्हाई आ गई है। अर्थात मैया के आदर के कारण भगवान को जो आनंद उत्पन्न हुआ है, उस आनंद के कारण भगवान का आलस्य आ गया है भगवान के शरीर में, इसके चलते भगवान को जम्हाई आ रही है। जृंभमाणस्य अर्थात तत्लालन जनित आनंद भर, अर्थात आनंद का जो प्राचुर्य है, आनंद को जो अतिरेक है, उसके कारण आलस्येन जृंभाम कुर्वतः सतः मुखे मुख विवरांतः। मुखे, किसी किसी ग्रंथ में मुखे ऐसा भी पाठ है। पीत प्राय से जननी सातस्य रुचिरस्मितम मुखे लालयति राजन। अब मुखम लालयति राजन, ये दो तरह के पाठ हैं, उसका जिक्र अभी श्री सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। जृंभाम कुर्वतः सतः मुखे मुख विवरांतः, अर्थात मुख गौहर में, मुख विवर में मैया ने यह सब दर्शन किया। क्या दर्शन किया उसका विवरण अगले श्लोक में दिया जा रहा है। द्वितीय अंत पाठे मुखम लालयंती तद्वारा जठरे ददर्श इति ज्ञेयम। अर्थात यहाँ दो बात व्याख्याकार लोग कह रहे हैं। अर्थात मैया ने जो दर्शन किया, विश्व का, ब्रह्मांड का दर्शन किया भगवान में, तो वो कहाँ दर्शन किया? भगवान के मुखमंडल में। कुछ ऐसा भी व्याख्या है और कुछ लोग कह रहे हैं, प्रमाण के साथ कह रहे हैं सभी दोनों। किसी ने कहा कि मुखमंडल में दर्शन किया, और व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के उदर में, भगवान के गर्भ में यह दर्शन हुआ। द्वितीयांत पाठे मुखम लालयंती तद्वारा, अर्थात मुख के माध्यम से जठरे ददर्श इति ज्ञेयम। कहा कि क्यों जठरे ददर्श, यह आपको कैसे पता चला? न कृष्णस्य चांतर जठरे जनन्या, अर्थात ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, उस स्तुति में ब्रह्मा जी ने निरूपण किया है, यह ऐसा नहीं कि अर्थात आप जगत के अंतर्वर्ती होते हुए भी जगत आपके अंतर में है। अर्थात जो भगवान इस जगत में विद्यमान है, उस भगवान में भी समस्त जगत विद्यमान है। इसका एक उदाहरण, जैसे किसी घर के अंदर, किसी कमरे के अंदर कोई घट रखा हो, तो यह संभव कभी भी नहीं है कि वह घर, वह मकान या वह कमरा उस घट के अंदर आ जाए। कमरा है या कोई घर है, उस घर के अंदर एक घट रखा है,
घड़ा रखा हुआ है, तो वह गृह आश्रय है और घट आश्रित है। ये कभी संभव नहीं है कि घट उस घर का आश्रय हो जाए, वो समग्र समस्त गृह उस घट में समाहित हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी इस ब्रह्मांड को अपने में समा सकते हैं, अपने को अपने में इस ब्रह्मांड को स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसा ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। अत्रैव माया धमनावतारे ह्यस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतन्ते। अर्थात यह केवल जो आपका नारायण स्वरूप है, उस नारायण स्वरूप में आप कारणार्णव में शयन करते हैं, एवं कारणार्णव में शयन करने के बावजूद यह समस्त ब्रह्मांड आपके उदर में विद्यमान है। अर्थात वह कारणार्णव इस ब्रह्मांड का एक अंश है। तो ब्रह्मांड के अंश में आप विद्यमान रहने के बावजूद, आपके रहने के बावजूद यह ब्रह्मांड भी आपके उदर में है, इस तरह की बात कर रहे हैं ब्रह्मा। वहां पर जो ब्रह्मा की स्तुति है अत्यंत अद्भुत स्तुति है। इस तरह के अनेक दार्शनिक बातें एवं भगवान के ऐश्वर्य की बातें, भगवान के दिव्यता की बातें वहीं की गई हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये केवल आपके नारायण स्वरूप में ऐसी दशा है, वो नहीं है। अत्रैव माया धमनावतारे ह्यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य, अर्थात आप इस प्रपंच में हैं, अर्थात आप इस संसार में, इस धरती में, इस मर्त्य में आपने अवतार लिया है। इस अर्थात ब्रह्मांड के, जगत के एक अंश में आप जब विद्यमान हैं, आप जिस समय विद्यमान है उस समय समस्त जगत आप में विद्यमान है। यह जो विलक्षणता है भगवान की, यह जो अचिंत्य शक्ति है भगवान की, यह अचिंत्य शक्ति जड़ वस्तु में या किसी और देवता में नहीं देखी जाती है, यह केवल भगवान में भी संभव है। इसलिए कह रहे हैं बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य, अर्थात ये बाहर विद्यमान समस्त जगत आपके जठर में, आपके उदर में मैया ने दर्शन किया। तो इस स्तुति के आधार पर, ब्रह्मा जी की इस उक्ति के आधार पर यह समझा जाता है कि मैया ने ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के उदर में किया। लेकिन श्रीधर स्वामी पाद बार बार कह रहे हैं आस्य, क्योंकि अभी हमने जिस श्लोक का उच्चारण किया, अर्थात इस लीला की जो भूमिका श्लोक है, तृणावर्ता गमे दृष्ट गौरवा संकिनिं प्रसुम बोधयन दर्शयामास जृंभमाण मुखे जगत। तो मुखे दिखाया इस श्लोक में, और जो इस अध्याय का प्रथम श्लोक है वहां भी दर्शयन विश्वम आस्ये च। तो श्रीधर स्वामी पाद बार बार कह रहे हैं, और मूल में भी कहा गया है कि भगवान ने मुखमंडल में जगत का दर्शन कराया। और ब्रह्मा जी की स्तुति में यह भी आया है भगवान ने अपने उदर में दर्शन कराया। तो ब्रह्मा जी की स्तुति का जब उस वहां पर हम लोग व्याख्या करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, इसका क्या रहस्य है, शायद यह बाद में समझ में आएगा। अभी तो हम श्री सनातन गोस्वामी पाद की जो टीका है उसके आधार पर आगे उसका अध्ययन करना चाहते हैं। द्वितीयांत पाठे मुखम लालयन्ति तद्वारा जठरे ददर्शयति ज्ञेयम, क्योंकि कृत्स्नस्य चांतर जठरे जनन्या, अर्थात अत्रैव माया धमनावतारे ह्यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य चांतर जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। मुखे इति ब्रह्मस्तुते है सप्तम्यन्तः पाठः एव तेषां सम्मतः। श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं सप्तम्यंत पाठ, अर्थात मुखे ऐसा पाठ श्रीधर स्वामी पाद का, तेषाम अर्थात श्रीधर स्वामी नाम सम्मतः, सप्तम्यंत पाठ एव तेषां सम्मतः। अग्रेपि मुखे दर्शनस्य व्याख्यानात्, अर्थात
हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, अर्थात यह जो ब्रह्मांड दर्शन की लीला है वह इस अध्याय में तो है ही, सप्तम अध्याय के अंत में यह लीला है, और अष्टम अध्याय में यह लीला फिर से है, जिसको मृदु भक्षण लीला कहा जाता है। भगवान ने मिट्टी खाई थी और उसका मुख का दर्शन यशोदा मैया ने किया। भगवान ने कहा कि नहीं, हमने तो मिट्टी नहीं खाई है। तो फिर कहा कि आप हमारा मुखमंडल का दर्शन कर लो, अगर हम मिट्टी खाए हैं तो मिट्टी का कुछ तो चिन्ह हमारे मुखमंडल में आपको देखने को मिलेगा। तब भगवान ने अपना मुखमंडल का दर्शन मैया को कराया था। तो उस समय भी मैया ने ब्रह्मांड दर्शन किया था, तो वो भी ब्रह्मांड दर्शन भगवान के मुखमंडल में हुआ था। इस बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सप्तम्यंत पाठ एव तेषां सम्मतः अग्रेपि मुखे दर्शनस्य व्याख्यानात्। कैसे ना, अग्रे अर्थात आगे जो अष्टम अध्याय में जिस ब्रह्मांड दर्शन लीला है, सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः। सा अर्थात मैया, यशोदा मैया ने तत्र ददर्श, यहाँ तत्र शब्द की व्याख्या में श्री स्वामी पाद कह रहे हैं मुखे, अर्थात सप्तम अध्याय में जो ब्रह्मांड दर्शन लीला है उसको भी मुखे कह रहे हैं, और अष्टम अध्याय में जो ब्रह्मांड दर्शन लीला है उसकी व्याख्या में भी श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं मुखे। लेकिन ब्रह्मस्तुति में यह है जठरे, तो यह जो विरोधाभास है यह अभी तक बरकरार है, हमारी समझ में अभी नहीं आया है। इसका क्या समाधान है? मैं समझ रहा हूं जब चतुर्दश अध्याय अर्थात जब ब्रह्मस्तुति का हम लोग अध्ययन करेंगे तो शायद यह बात और स्पष्ट होगी। अग्रेपि मुखे दर्शनस्य व्याख्यानात् सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु च खम दिशः। ये अष्टम अध्याय की बात है, अर्थात मैया ने, भगवान ने तत्र अर्थात मुखमंडल में, मुख गह्वर में जगत को देखा, स्थास्नु जो जगत और चरिष्णु जो जगत सबको देखा। साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम, अद्री द्वीप समुद्र सहित जो भूमंडल उसको भी देखा। सवायु अग्निंदु तारकम, अर्थात जिसका वर्णन अभी अगले श्लोक में किया जाएगा, इस तरह की घटना वहां भी हुआ है। अर्थात इस अध्याय में मुखमंडल में ब्रह्मांड दर्शन में जिन जिन पदार्थों का दर्शन हुआ है, जिन जिन वस्तुओं का दर्शन हुआ है, उन्हीं वस्तुओं का दर्शन वहां भी हुआ है, उसका वर्णन उसी रूप से है। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं मुखे दर्शनस्य व्याख्यानात् इदम अस्माभिर्यद् दृश्यते तदेव विश्वम न तु अन्यत् तस्य विग्रहस्य अचिन्त्य शक्तिया विभुत्वात् इति भावः। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं यह जो जगत दिख रहा है हम लोगों के सामने, या यशोदा मैया को बाहर जिस जगत का दर्शन हो रहा है वही जगत अविकल रूप से भगवान के मुखमंडल में, भगवान के मुख गह्वर में उस जगत का दर्शन हुआ। जैसे यशोदा मैया दर्शन कर रही है, समस्त ब्रज का दर्शन कर रही है, अपना घर का दर्शन कर रही है, और भगवान का जो वो आदर कर रही है या भगवान को गोद में ली हुई है, वो भी दर्शन भगवान के मुखमंडल मुख गह्वर में हो रहा है। सा तत्र पीत मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे त्विदम। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं अस्माभिर यद दृश्यते, अर्थात इदम यत विश्वम अस्माभिः दृश्यते तदेव विश्वम न तो अन्यत। ये नहीं कि दूसरा कोई विश्व भगवान अपने मुख गह्वर में दिखा रहे हैं, जो विश्व बाहर प्रकाशित है वही विश्व भगवान के मुख गह्वर में दिख रहा है। तस्य विग्रह से अचिंत्य शक्तियां विभुत्वात्, अर्थात भगवान का, जब भगवान इतना बालक हैं, इतने छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, उस अवस्था में भी भगवान का जो अचिंत्य शक्ति, तो वह अचिंत्य शक्ति प्रकाशित हो रहा है। अर्थात भगवान का विभुत्व, भगवान का अचिंत्य शक्तिमत्व कभी भी किसी भी अवस्था में व्याहत नहीं होता है, चाहे वो बालक हो, शिशु हो, नन्हा सा बच्चे हों, या किशोर हो या युवा हों, जैसे भी हो, जिस किसी अवस्था में भगवान विद्यमान होते हैं, भगवान का
अचिंत्य सामर्थ्य में कभी भी न्यूनता नहीं आती है एवं भगवान कभी भी अपने विभुत्व को नहीं खोते हैं, अपने हमेशा अपने सामर्थ्य के साथ, अपने ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। इस बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। पीतप्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे त्विदम। अर्थात मैया ने दर्शन किया। तो यहाँ पर हमारे जो वैष्णवानंदिनी व्याख्या का वो कुछ थोड़ा सा इसमें और उत्कर्ष लाना चाहते हैं। कह रहे हैं भगवान को विचार आया यंग मत प्रसुः सर्वज्ञा एव। अर्थात हमारी ये जो मैया है, ये जो यशोदा मैया है, ये तो सर्वज्ञा है, क्योंकि सर्वज्ञ को भगवान को भगवान में प्रकट करने वाली मैया वो असर्वज्ञ कैसे हो सकती है। तो भगवान जानते हैं कि मैया भी सर्वज्ञ है, मैया भी हमारे से कोई कम जानने वाली नहीं है। इयं मत प्रसुः सर्वज्ञा एव किंतु मत ऐश्वर्य स्वरूपम सदैव जानाति। अर्थात मेरा जो ईश्वर स्वरूप है वो जानती है। अर्थात यद्यपि मेरे प्रति उसका वात्सल्य भाव है, लेकिन मेरा ऐश्वर्य को भी ये जानती है। न तो दृष्टवती, क्योंकि ये बात और आगे स्पष्ट होगी जब सनातन गोस्वामी पाद की व्याख्या होगी कि मैया का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो क्या है, और वो जो वात्सल्य ज्ञान है, जो वात्सल्य प्रेम है, उसके साथ ऐश्वर्य ज्ञान किस तरह से समन्वित है। तो ऐश्वर्य ज्ञान कैसे वात्सल्य के सामने कमजोर है, निष्प्रभ है एवं आवृत है, इसकी व्याख्या यहीं पर श्री सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं मत प्रसुः सर्वज्ञा एव किंतु मत ऐश्वर्य स्वरूपम सदैव जानाति न तो दृष्टवती। अर्थात मैया ने कभी मेरा ऐश्वर्य को देखा नहीं। तद अदर्शनादेव मयि भयम, क्योंकि इससे पहले जो लीलाएं हुई हैं, जो 2 लीलाएं हुई हैं, जो 3 लीलाएं हुई हैं, पूतना का वध हो, सकटासुर का वध हो, तृणावर्त का वध हो, वहां भगवान ने, मैया ने ऐश्वर्य नहीं देखा भगवान का। अर्थात यद्यपि भगवान ने ये सब किया, लेकिन मैया स्पष्ट रूप से कभी भी भगवान का ऐश्वर्य को नहीं देख पाई। तो भगवान की इच्छा हुई मैं स्वतंत्र रूप से मैया को अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराऊंगा, ताकि मेरी मैया जो बार बार डर रही है, मेरे बारे में बार बार उसको संदेह हो रहा है कि मेरी कुछ हानि हो जाएगी, ये सब असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, या जो उपद्रव ब्रज में हो रहा है उसके चलते मेरा अनिष्ट होगा, इस तरह की जो आशंका मैया के हृदय में है, उस आशंका को मैं दूर करूंगा अपना ऐश्वर्य को निस्संदिग्ध रूप में दर्शन करा करके। अभी तक जिस ऐश्वर्य का दर्शन भगवान ने कराया है वो असंदिग्ध नहीं है, वो संदिग्ध ऐश्वर्य है। क्यों? ये बार बार मैया के चित्त में या गोपी जनों के चित्त में, गोपवासियों के चित्त में यही आता है, शायद भगवान ने इसको बचा दिया, हमारा बच्चा तो अभी नष्ट प्राय हो गया था, लुप्त प्राय हो गया था, उसको भगवान ने बचा दिया। इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई भी यह निश्चय प्रच नहीं कह रहा है, अर्थात निश्चय न कोई भी यह नहीं कह रहा है भगवान ने तृणावर्त का वध कर दिया। तो उस तरह का ऐश्वर्य का मैं प्रदर्शन कराऊंगा, ताकि मैया को विश्वास हो जाए कि मेरा बालक, मेरा यह जो पुत्र है, यह किसी भी उपद्रव का शिकार नहीं होने वाला है। न तो दृष्टवती तद अदर्शनादेव मयि भयम संकते तत् एनाम ऐश्वर्यम प्रदर्श्य निस्संकयामि इति तद अदर्शयत। अर्थात मैया के प्रति जो प्रेम है, मैया की जो व्याकुलता है भगवान को लेकर के, मैया की जो चिंता है, उस चिंता को दूर करने के लिए ही भगवान ने इस तरह का ऐश्वर्य का दर्शन अपने मुखमंडल में ब्रह्मांड दर्शन करा करके भगवान कर रहे हैं। इस बात को
हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं। तो मुखम लालयते राजन जृंभतो ददृशे त्विदम सा जननी इदम ददृशे, अर्थात ददर्श, मैया ने मुखमंडल में, भगवान के मुखमंडल में ऐसा देखा। क्या देखा? अगले श्लोक में उसका विवरण है। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुवह्नि श्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान्नगांस्तद् दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुवह्नि श्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान्नगांस्तद् दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। अर्थात क्या क्या नहीं देखा। मैया ने भगवान के मुख गह्वर में, मुख के अभ्यंतर में इतनी सारी चीजें देखी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य नेत्र से जिन चीजों को बाहर नहीं दे सकता है, किसी भी पहाड़ के ऊपर जाकर के खड़ा होकर के जब हम कभी कोई मौका ऐसा मिलता है, किसी शहर का दर्शन करते हैं या विमान यात्रा के समय कभी शहर का दर्शन करते हैं, उस समय भी हम लोग इतना कुछ नहीं देख पाते हैं जितना मैया ने अपने गोद में लेकर के भगवान को, उनके मुखमंडल का लालन करते हुए, आदर करते हुए मैया ने जितनी वस्तुओं का दर्शन किया, जितना कुछ का दर्शन किया। खम अर्थात यहाँ ख शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष, अर्थात भूलोक और स्वर्ग लोगों के बीच का जो स्थान है उसका दर्शन किया। रोदसी अर्थात द्यावा पृथिव्यो, अर्थात स्वर्गलोक एवं भूलोक, अर्थात भूर्भुवस्व। खम अर्थात भूवर्लोक एवं रोदसी भूर्लोक एवं स्वर्लोक, अर्थात भूर्भुवस्व, तीनों लोकों का मैया ने भगवान के मुख गह्वर में दर्शन किया। ज्योतिरनेकम अर्थात समस्त नक्षत्र मंडलों का, नक्षत्रों का जो समूह है उसका दर्शन किया। आसाह अर्थात समस्त दिक्, जो दिक् है या विदिक है, जो चार दिशाएं हैं और चार दिशाओं के जो चार कोण हैं, या ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है, सब कुछ। आसाह सूर्येन्दु बन्ही श्वसनाम बुधिंश्च, सूर्य का दर्शन किया, इंदु का दर्शन किया, बहनी का दर्शन किया। श्वसन शब्द का अर्थ है वायु, अर्थात वायु के वेग का दर्शन किया, अर्थात वायु के प्रवाह होने का, प्रवाहित होने के वायु का दर्शन किया। अम्बुधिंश्च अर्थात समस्त समुद्रों का भी दर्शन किया भगवान के मुख गह्वर में। द्वीपान अर्थात जितने भी द्वीप हैं, सप्तद्वीप, वसुमती का दर्शन किया। नगान, यहाँ नग शब्द का अर्थ है, नग शब्द का दो अर्थ किया गया है। नग तो एक तो पहाड़ है, न गच्छति, और वृक्ष भी नग है। तो नगान अर्थात वृक्षान पर्वतांश्च। अत तद दुहितृ अर्थात जब नग शब्द का अर्थ होता है पर्वत, वो पर्वत की जो दुहिताएं हैं, अर्थात पर्वत से निस्यंदित होने वाली जो नदियां हैं उनका दर्शन किया। और वनानी अनेकों वन का दर्शन किया। भूतानी अर्थात समस्त प्राणियों का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का दर्शन किया। स्थिर जंगमानी अर्थात जितने चर अचर भूत थे, प्राणी थे, समस्त प्राणियों का दर्शन भगवान ने, मैया ने भगवान के मुख गह्वर में किया। खंग्रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुवह्नि श्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान्नगांस्तद् दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। तो नगान तद दुहितृर्वनानि, यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं नगान द्वीपाख्याकरान जम्बुआदि वृक्षान, अर्थात ये जम्बू प्लक्ष इत्यादि जो पृथ्वी में जो द्वीप समूह हैं, उस द्वीप का नामकरण वृक्षों के नाम के आधार पर है। तो यहाँ नग शब्द का अर्थ है द्वीपाख्य करान, अर्थात जिन वृक्षों के नाम के आधार पर
जम्बू प्लक्ष प्रभृति द्वीपों का नामकरण हुआ है, उन वृक्षों का दर्शन किया। नगान, ये विशेष तरह की उनकी व्याख्या है। नगान द्वीपाख्याकरान जम्बुआदि वृक्षान और पर्वतान, ये भी नग शब्द का अर्थ है पर्वतान। तद दुहित्रुह अर्थात नदी ही। तो इन वस्तुओं का दर्शन मैया ने भगवान के मुख गह्वर में किया। सावीक्ष्य विश्वम सहसा, सावीक्ष्य विश्वम सहसा राजन संजातवे पथुः सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। सावीक्ष्य विश्वम सहसा राजन संजातवे पथुः सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। सावीक्ष्य विश्वम सहसा राजन संजात वेद, अर्थात भगवान के मुख गह्वर में सहसा, सहसा शब्द का अर्थ है अकस्मात युगपच्च, अर्थात अकस्मात, क्योंकि मैया भी भगवान को स्तन्यपान कराने के बाद भगवान का आदर कर रही थी, भगवान को स्नेह प्रदान कर रही थी, और हठात, और सहसा शब्द का अर्थ है युगपत, अर्थात एक साथ। ये नहीं कि पर्याय क्रम से पर्वतों का दर्शन किया, आकाश का दर्शन किया, भूर्भुवस्व का क्रमेण दर्शन किया, ऐसा नहीं। तो सहसा शब्द का अर्थ श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं अकस्मात युगपच्च साक्षात दृष्ट्वा विश्वम, अर्थात समस्त विश्व को देख करके संजात वेपतु, मैया तो घबरा गई भगवान का इस स्वरूप को देख करके। तब भगवान ने, मैया ने नेत्र बंद कर लिया कि ऐसा स्वरूप का दर्शन वो सहन नहीं कर पा रही थी, तो इसका वो नेत्र बंद कर लिया। अभी बातें तो बहुत हैं, अर्थात यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद बहुत कुछ नई बातें कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण आगे हम उसका निरूपण नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे के क्लास में इन बातों की चर्चा होगी, एवं इस लीला अत्यंत प्रेममयी लीला है। अत्यंत यद्यपि ऐश्वर्य का प्रदर्शन भगवान ने किया है, लेकिन मैया ने इसको अपने वात्सल्य भाव से उस ऐश्वर्य को भुला करके केवल वात्सल्य लीला का ही आनंद ले रही है। तो इसका निरूपण अन्य व्याख्याकारों के आधार पर आगे किया जाएगा। तो भगवान की कृपा से मुझे बीच में एक दिन का मौका मिला, तो इसके लिए मैं आप सब भक्तजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ। हमारे प्रिय मित्र श्रीपाद जयकांत प्रभु जी की भी कृपा है, श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी की अनंत कृपा है, समस्त वैष्णवों की कृपा का अनुभव करते हुए सभी के चरणों में प्रणिपात पुरस्सर मैं अपनी वाणी को अभी विश्राम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम। जय श्री राधे। राधे राधे। प्रणाम सर, जय राधे। राधे राधे। प्रणाम प्रणाम भगवान, प्रणाम। नमो नमः।